overseas Pakistanis have always been backing up Pakistan in so many ways. तो आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आर दे एनी आइडियाज़ योर प्लानिंग और यूर जस्ट हैविंग? ऑस्ट्रिया के हवाले से अगर बात करें या यूरोप के हवाले से बात करें, एक्चुअली ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म, we are already working on it since many years. We're working to promote the tourism. We are working with the Ministry of Tourism. What was the motive? काम तो आप कर रहे थे, एक होता है आप शौक की वजह से भी काम करते हैं, लेकिन एक होता है कि आप कुछ बदलने की, किसी चेंज की वजह से भी काम करते हैं. Actually जो चेंज की बात है, to be honest, from day first I was working and I had always in my mind to do something for the country and for the people of the Pakistan. After a few years, I just observed what was happening in Austria with my work and everything. Then we have started the organization because I had already exposure with the organization, working with the UN, Rotary and some other familiar organizations. What do you think are the challenges faced by overseas Pakistanis? And what are the possible solutions to address those issues? Challenges की बात करें तो most of the time जो मुझे भी experience हुआ है, people जो लोग वहाँ पे आते हैं mostly unskilled होते हैं, professional नहीं होते. जहाँ तक migration, asylum की बात है, I would suggest कि जो लोग हैं उनको always legal channels use करने चाहिए. अगर आप educated नहीं हैं तो please come into a skill because they are highly paid also skilled जो persons there हैं. आप वैसे मत जाएगा. क्या आइडियाज़ होने चाहिए कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि नहीं हमें पाकिस्तान की भी नेचर देखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कवर पाकिस्तान रियली इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब. जिस तरह से पाकिस्तान को पोर्ट्रे ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं उनको दिखा रहे हैं. बीइंग एन ओवरसीज़ मैं खुद रेगुलरली देखता हूँ और हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको प्रमोट भी वहाँ पे करते हैं ऑल ओवर द यूरोपीय यूनियन. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डिस्कवर पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट वरीश शाहबाज. तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो इंतहाई अहम और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, मिस्टर शाहिद नदीम. मिस्टर शाहिद नदीम ऑस्ट्रिया पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इसके अलावा वो यूरोपीय यूनियन और मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एज अ सीनियर कंसल्टेंट भी काम कर रहे हैं. आइए उन्हें वेलकम करते हैं. वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान स्टूडियोज. कैसे हैं आप? Thank you very much for having me here and I'm good. How about you? I'm good. Thank you for asking. Before we go ahead, I just want to ask a question about your journey from Pakistan to Austria. How was it and what were the challenges? और उसमें आपका मोटिव क्या था, क्या मुश्किलात आई और क्या जहन में कुछ टारगेट सेट थे ऑलरेडी? If we go back like 18 years back when I went to Austria, around 18 years. So I was studying here. I did my bachelor masters from Pakistan and that time when I was studying I have joined the UN के कुछ projects में I was working on it and then I went to US because there was a UN headquarter. I spent some time on a few projects there. Then I went to Vienna. Vienna has also second UN headquarter. From that I got opportunity to working with some government departments there and that was the actually turning point. I was everywhere actually that time but I liked really very much the country because it was a nature beauty, security and all their social sector, infrastructure, everything you can name it, and was excellent. And I was before there everywhere in US, Canada, I lived in the UK, everywhere, but really I liked the most the country. And also I want to know what was the motive? काम तो आप कर रहे थे, एक होता है आप शौक की वजह से भी काम करते हैं, लेकिन एक होता है कि आप कुछ बदलने की, किसी चेंज की वजह से भी काम करते हैं. What was your motive? Actually जो चेंज की बात है, to be honest, from day first I was working and I had always in my mind to do something for the country and for the people of the Pakistan. So जब मैं वहाँ भी गया, when I started my career and everything parallel I was working what I can bring back or what I can do for the country. After a few years I just observed what was happening in Austria with my work and everything.
then we have started the organization because I had already exposure with the organization working with the UN, Rotary and some other familiar organizations. So since you're working at European level, what do you think are the challenges faced by overseas Pakistanis, and what are the possible solutions you think there are to address those issues? चैलेंजेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, पीपल जो लोग वहाँ पे आते हैं मोस्टली अनस्किल्ड होते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते, या दे डोंट हैव एनी बिजनेस और प्रोफेशनल बैकग्राउंड. तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ से कोई भी लोग जब वहाँ पे जा रहे हैं तो दे हैव सम स्पेसिफिक स्किल्स और प्रोफेशन और ट्रेंड इन समथिंग तो इजीली वहाँ पे इंटीग्रेट हो सकें. तो वो यही चैलेंजेस है जो वो फेस करते हैं इनिशियली, कि उनको इंटीग्रेट होने में लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल वो ना होने वजह से, स्किल्ड प्रॉपर ना होने की वजह से जो वहाँ के स्टैंडर्ड से मीट करती है, तो वो इनिशियली उनको फिर इंटीग्रेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके लिए फिर जो काफ़ी उनके लिए हार्डशिप होती है द इनिशियल 2-3 इयर्स उस सारे सिस्टम को अडॉप्ट और उसमें इंटीग्रेट होने के लिए. तो अगर वो यहीं से प्रिपेयर हो के जाएँ, कुछ ना कुछ स्किल या प्रोफेशन या कोई ऐसी चीज़ें साथ अपने बिजनेस स्किल्स जो हैं कुछ भी लेके जाएँ, तो आई थिंक दैट विल बी ईजी फॉर देम टू इंटीग्रेट एज क्विकली एज पॉसिबल इन द सोसाइटी, और वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अभी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमिग्रेशन और असाइलम लॉज जो हैं दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट ओवर टाइम, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसा हमारा इवन यूथ भी ऐसा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं टू हैव अ बेटर फ्यूचर. व्हाट डू यू थिंक, आपके पास उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जहाँ तक माइग्रेशन असाइलम की बात है, आई वुड सजेस्ट कि जो लोग हैं उनको ऑलवेज लीगल चैनल चूज़ करने चाहिए. दे आर मैनी लीगल वेज. उसमें वो एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, उसमें आजकल द यूरोप इज़ ओपन फॉर द स्किल्ड पर्सनस, फॉर प्रोफेशनल्स. So they need it really a lot, but the problem is our standards are not matching with their standards. तो यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है. तो लोगों को if you are not educated enough तो चाहिए आप skilled में आ जाएं. There are certain courses, उनको plumbers भी चाहिए, electricians भी चाहिए, car mechanics भी चाहिए, engineers आप ले लें, doctors ले लें, IT, AI, automation, आपके construction sector में. तो we actually had been working few years with few other UN and European organizations के हम, बल्कि गवर्नमेंट से भी इस सिलसिले में, हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री से भी मेरी एक दफ़ा मीटिंग हुई थी इस सिलसिले में. सो इफ़ दे हैव अ स्किल विच रियली मैचेस विद देयर स्किल्स, तो दे इवन डोंट नीड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे कैन अप्लाई देयर ओन. तो वो पॉइंट्स में अगर क्वालिफाई करते हैं तो दे कैन अप्लाई, एंड आफ्टर 6 months दे गिव सम टाइम जॉब सीकर वीज़ा, 1 year दे गिव टाइम, सो दे कैन गो देयर एंड फाइंड अ जॉब. वंस दे गेट द जॉब, दिस कैन चेंज इनटू अ रेजिडेंस देयर. सो लोगों को एज आई सेड दैट अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो प्लीज़ कम इनटू अ स्किल, बिकॉज दे आर हाईली पेड ऑल्सो स्किल्ड जो पर्सनस देयर हैं. आप वैसे मत जाए वहाँ पे, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड टू लिव एंड सर्वाइव एंड एस्टैब्लिश देयर. दे हैव नो फ्यूचर राइट नाउ देयर, बिकॉज देयर असाइलम एंड इमिग्रेशन जो लॉज हैं दे हैव ऑल्सो रिसेंटली चेंज. एनीवे इवन दे नाउ चेंज, बट इट वाज टफ सिंस 10 years, because I'm still attached with the immigrations and asylum departments and I was working with them. I know personally कि वहाँ पे is not easy. अगर कोई आपको कहता है कि जी आप वहाँ पे चले जाएं and once you arrive there and reach there, so you will get asylum or you will get the immigration status, this is a totally lie. लोगों ने हमें इतना उनको भी trained कर दिया है कि they know the all stories and everything what the people come and say. And at times it used to be the quickest way out कि आपने asylum लिया है and you can go anywhere. Yeah, but that was the easy way out. Yeah, no, this is not the case anymore. Actually, asylum एक पहली बात तो ये है कि उसमें भी asylum में भी categories होती हैं. If they really consider you are on that level and that level threat and you are a prominent person,
तो उसमें भी डिफरेंट दैन स्टेजेस आ जाती हैं. सम टाइम दे जस्ट अलाउ यू, ओके यू कैन स्टे हियर फॉर अ few years and then go back. They don't grant you anything, they just give you permission. फिर उसमें subsidiary protection आता है. With subsidiary mean is a half kind of asylum. Okay, you get some amenities, some उनकी जो है चीज़ों को avail आप कर सकते हैं. You get under consideration sort of. Not under consideration, they just allow you for few facilities with a few years you can. Okay. And the other form is they give you grant you a full asylum. The full asylum is really a tough, that is not easy, and even after that you cannot come back to your country. Yeah. Pakistani people, if they go there just to settle, there's no way right now. So जो भी ऐसे लोग जो उनको इस उसमें कन्विंस करके या वट एवर, या पेरेंट्स जो हैं, उन पेरेंट्स के लिए भी कि फॉर गॉड सेक आप उनको ना ही अपना उसमें जो है ना पैसा ज़ाया करें, और ना ही उनको, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस रूट जो वो लेते हैं. अगर कोई 100 में से 10-20% वहाँ चले भी जाते हैं तो इट्स नॉट अ केस कि उनको वहाँ पे जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा. और होता ये कि वो वहाँ पे चले भी जाते हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स वन एवर द पुलिस कैचेस दे सेंड यू बैक. इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैव ऑलवेज बीन बैकिंग अप पाकिस्तान इन सो मैनी वेज. तो आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आर दे एनी आइडियाज़ योर प्लानिंग और you're just having? ऑस्ट्रिया के हवाले से अगर बात करें या यूरोप के हवाले से बात करें, एक्चुअली ऑन अ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म, we are already working on it since many years. We're working to promote the tourism. We are working with the Ministry of Tourism. We are also collaborating time to time with the Discover Pakistan TV channel on different topics and we organized the webinar, and we had also in the past we organized the tourism conference as well. That was a virtual, that how we can connect the West Austrian और पाकिस्तानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपस में टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स. एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, लेदर है आपके, उसके अलावा टेक्सटाइल है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सो if the Austria has something, Pakistan has also something to offer. तो बात यही है, on organization level we are trying our level best कि उन businesses को आपस में कैसे हम इकट्ठा करें, collaborate करें, because government तो अपने तौर पे, government के अपने भी issues होते हैं, challenges होते हैं, वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, but I think is a mainstream ये businesses का भी, organization का है कि वो प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, उनको collaborate किया जाए और वो फिर आगे मिल के उसमें growth लेके आए, which we are already working and we are doing that. Currently you're having government of Pakistan on board with you. We are working with we had like a few things with the Ministry of Tourism. Okay. We also like promoting the State Bank of Pakistan. We are time to time we are collaborating with them, and quarterly we are working with them on the webinar to promote, for example, the Roshan Digital account and its affiliated services. We are working with the stock exchange to promote in Austria and Europe. We have a group of business peoples, not in Austria. I have developed actually personally in the major all European countries. We have a group. We are working to promote कि लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जब तक उनमें अवेयरनेस नहीं आएगी, उनको पता नहीं चलेगा, तो दे डोंट नो इवन स्टॉक एक्सचेंज इज अबव देयर एक्चुअली माइंड. और डिस्कवर पाकिस्तान का हमेशा से एक विजन रहा है कि लोगों को पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना, हर वो चीज़ शायद जो हम पाकिस्तान में रहते हुए भी नहीं देख सकते, ये प्लेटफॉर्म जो है वो हर मुमकिन कोशिश करता है उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की, दिखाने की. अब ऑस्ट्रिया इटसेल्फ इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट और बहुत खूबसूरत है, इट्स नेचुरली वेरी प्रिटी माशाल्लाह. तो व्हाट डू यू थिंक कि वहाँ के लोग पाकिस्तान की नॉर्थ साइड को क्यों देखना चाहेंगे, और अगर देखना भी चाहिए, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इट्स योर मदरलैंड, तो उसके लिए क्या इक़दामात हैं या क्या आइडियाज़ होने चाहिए कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो कि नहीं हमें पाकिस्तान की भी नेचर देखनी है?
First of all, तो Discover Pakistan really is doing a tremendous job. जिस तरह से पाकिस्तान को पोट्रे ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं उनको दिखा रहे हैं. बीइंग एन ओवरसीज़ मैं खुद रेगुलरली देखता हूँ और हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको प्रमोट भी वहाँ पे करते हैं ऑल ओवर द यूरोपीय यूनियन ये स्टेट्स जहाँ भी हैं ग्रुप्स में हैं ताकि लोग पाकिस्तान की ब्यूटी को भी देखें. सबसे पहले तो वी आर ट्राइंग कि वहाँ के जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ. और उसके लिए मैं जब सोचता हूँ तो बड़ा ज़रूरी है बिकॉज वंस आई वाज इन ऑल्सो नॉर्दर्न एरियाज़ तो वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छी ट्रांसपोर्ट दीज आर द बेसिक्स कि अच्छी ट्रांसपोर्ट हो रोड आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो अकोमोडेशन नॉट उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो 4 स्टार 5 स्टार हो 2-3 स्टार विद ऑल द इम्यूनिटीज़ और क्लीन हो ताकि वहाँ पे जाके आप जो है ना रह सकें. बट इज़ अ रियली वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एरियाज पाकिस्तान है अल्लाह ताला ने हमें जो है इसको दिया है. तो सबसे पहले वी आर ट्राइंग कि उनको कन्विंस किया जाए और फिर दूसरा ये कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. वो ये 2-3 चीज़ें अगर गवर्नमेंट इन पे काम करेगी दीज आर द बेसिक्स के एटलीस्ट ओवरसीज़ आएंगे और स्पेशली प्लान करेंगे अपने हॉलीडेज़ अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आना. अब अगर हम प्योरली ऑस्ट्रियंस की बात करें तो ऑब्वियसली वंस दे कम इफ़ आई हैव फ्रेंड आई एम वर्किंग विद देम आई एम गोइंग आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड विद ओके बिकॉज आई नो देयर मेंटालिटी आई नो द मेंटालिटी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई सर्कल्स. सो अगर मैं सेटिस्फाई हूँ ओके दे कैन ऑल्सो कम तो डेफिनेटली आई कैन कन्विंस देम टू कम. पाकिस्तान का यूथ देखा जाए तो देर आर मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स एज वेल. वो अगर पढ़ने के लिए ओवरसीज़ जाना चाहते हैं यूरोप जाना चाहते हैं तो मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं उनके लिए? उसमें मेरिट बेस्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें जी देखें एजुकेशन में इंटर या ग्रेजुएशन तो आपको होना चाहिए एंड अगर हम ऑस्ट्रिया या मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में they offering a free of cost education. Yeah, that is one thing I've always been very concerned. So मेरे ख्याल में ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपको जस्ट यू आर पेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी जो उनकी $200-300 यूरोज वट एवर है यू आर पेइंग पर द एजुकेशन or else it's completely funded. Else is completely but your living expenses are there but the tuition fee is a free. If you think about the US or UK or Canada in countries के बारे में so they have yearly 15-20 thousand जो है pounds or dollars their fee so you are saving that and they have a top class universities there. तो आई सजेस्ट कि लोगों को उस तरफ आना चाहिए. आई थिंक वहाँ पे इस तरह से कंपटीशन भी नहीं है जिस तरह से यूएस की हम बात करते हैं यूके की या हम कनाडा की बात करते हैं बिकॉज ऑफ सम लैंग्वेज बैरियर्स. तो आप जब वहाँ पे आते हैं यू आर एजुकेटेड तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप एजुकेशन के साथ साथ लैंग्वेज को भी आप जो है वो कर सकते हैं विद एन ईयर 2 years. और जब आप वहाँ से डिग्री कर लेते हैं तो you can change it to the work permit. You look for a job. If any company आपको किसी भी company से full time offer हो जाता है तो you can apply with the department and it can change it to the आपकी normal residence में and you can job and you can stay normal as a resident. So education में students को यूरोप ऑस्ट्रिया या दूसरे जो countries हैं उनकी तरफ आना चाहिए. Free education है आप ये avail करें. जहाँ पे अगर आपको किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपके चैनल के थ्रू बेशक वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस कर सकते हैं और कोशिश करें यहाँ भी जो कंसल्टेंट हैं उन कंसल्टेंट्स के पास जाएं जिनको वहाँ का एक्सपोजर है जो वहाँ पे खुद गए हैं जिनको वहाँ का पता है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ भी आके जो है वो हमसे ऑर्गेनाइजेशन के दे फाइंड आउट ऑन अ वेब दे कॉन्टेक्ट अस ओके दे हैव दैट इशू एजुकेशन उसमें हाउसिंग का है उसमें रेजिडेंट्स को आपने रिन्यू करवाना होता है. देयर आर आल्सो मैनी चैलेंज तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे गाइड भी करते हैं कि व्हाट आर द वेज ओके अब आप ये करें हाउसिंग के लिए इशू आ रहा है तो ऐसे करें. एक यही चीज़ आ जाती है ना कि आपको गाइडेंस के लिए कोई नहीं मिल रहा होता आपको नहीं पता होता. आप जिस कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि दे जस्ट टेक द मनी एंड रन. Exactly. तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन एंड यू आर ऑफरिंग ग्रेट.
तो ये ऑलवेज़ जो है ना, मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मेक श्योर कर लें जिस भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, बिकॉज आई हैड फ्यू नेम, उसमें कुछ लोग हैं मैंने खुद उनको देखा है कि ये वो उनके खुद के वीज़े नहीं लगे हुए और वो यहाँ के टॉप हैं और दे आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी। तो ये गवर्नमेंट को भी एक्चुअली चाहिए कि वो इसको लाइसेंसेस के थ्रू करें। Exactly. लाइसेंस्ड आपके कंसल्टेंट हों और वो कंसल्टेंट हों, वो चाहे स्टूडेंट्स हों जो वहाँ पे स्टडी करके आए हों यहाँ पे एंड दे हैव अ करियर, या वो लोग जो वहाँ से एटलीस्ट उनको एक्सपीरियर हो, पता हो, उनके वीज़ाज हों, दे नो अबाउट कि कैसे वहाँ पे वहाँ के एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, वहाँ पे क्या ठीक है। डिफ़िकल्टीज हैं, लोग कैसे अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर क्वेश्चन कि व्हाई डू वी ऑलवेज रन टू कंसल्टेंट्स? आई मीन हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमारे पास हर चीज़, इवन एट टाइम्स आई यूज़ टू स्क्रॉल डाउन और मैं यूरोप यूनिवर्सिटीज़ देखती थी अपने मास्टर्स के लिए और वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ना एट सम पॉइंट मैं खुद भी बहुत बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं कि हाउ डू आई प्रोसेस एनी फर्दर। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वेबसाइट्स देखते हैं, इंफॉर्मेशन होती है बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोसीड। उसमें आई थिंक आ जाता है, अगर आप लाहौर में किसी ऐसे सिटी में रह रहे हैं, यू हैव एक्सपोजर ऑलरेडी, आपको पता है कि कैसे कनेक्ट करना है यूनिवर्सिटी से, प्रोसेसेस, यू आर कॉन्फिडेंट। बस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरे सिटी से होते हैं, रिमोट एरिया से ऐसे लोग होते हैं, और फिर वो कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे लोग हैं एंड द प्रोसेस इज गोइंग थ्रू विद दैट पर्सन, और वो इनके लिए कॉन्टेक्ट काइंड ऑफ इस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो उनके लिए थोड़ा सेटिस्फेक्शन फैक्टर है। वो करें, लेकिन उसको आप जो है ना उसको वेरीफाई कर लें कि यू आर इन अ रियली इन अ गुड हैंड्स, और फिर उसके थ्रू वो प्रोसेस करें एंड दे शुड कम टू यूरोप। दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई सजेस्ट, इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, के दे हैव बेटर देन अपॉर्चुनिटीज़ अगर यूके या किसी भी उसको कंसीडर करें। बहुत पोटेंशियल है वहाँ पे एंड डिमांडिंग जो है सारे प्रोफेशंस, आप स्किल्ड ले लें, कोई भी एनी नेम इट, दे नीड पीपल्स, और वहाँ से ज़्यादा स्कोप है। और अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें, सो दैट इज़ द आई थिंक ओनली कंट्री फॉर, इट्स अ ड्रीम कंट्री फॉर द जो जॉब करने वाले हैं, दे गेट 14 सैलरीज अ ईयर। Okay. So that is the, I think is the only country which offer the 14 salaries, यानी आपको साल में 2 extra salaries मिलती हैं। I believe it must be. So that is the, I think only, might few they offering 13, but the only country offer the 14 salaries. So वहाँ पे potential है जॉब के लिए, बिजनेस के जॉब के लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्किल्ड के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको कंसीडर करें, बट विद द राइट पर्सन। और वहाँ के हवाले से भी आप अपने आप को प्रिपेयर, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो के आएँ, अपने हाउसिंग क्या करना है। और वहाँ पे आके भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ के आके कहीं और मूव हो जाते हैं, देयर इज़ नॉट इंटेंशन टू स्टडी देयर, तो वो स्टडी के लिए आते हैं बट दे मूव टू सम अदर कंट्रीज। तो मैं उनके लिए भी सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट मेक योर लाइफ डिफ़िकल्ट। अगर आप स्टडी के लिए गए, एक तो पाकिस्तान के नाम को बदनाम मत करें, वहाँ पे स्टडी करें। स्टडी इज़ माइट इट विल टेक 1 year 2 year, लेकिन आप डिग्री कर लेंगे तो योर होल लाइफ इज़ ईजी, यू आर इस्टेब्लिश्ड देयर। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करेंगे एंड यू फाइंड सम अदर वेज टू इस्टेब्लिश, यू विल मेक योर लाइफ रियली हार्ड। तो आप स्टडी अपनी कंप्लीट करें, माइट इट विल बी, बिकॉज आप साथ में जॉब भी कर सकते हैं। इट्स नॉट एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू स्पेंड 1 year or 2 year टू कंप्लीट योर डिग्री। तो प्लीज़ कंप्लीट अपनी डिग्री वहाँ पे करें आप। आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री आप वहाँ पे जॉब करें, तो व्हाट यू विल गेट मे बी इन 15 years you will get in 5 years. And again, thank you very much for having me on the show, and for entire the Discover Pakistan team for inviting me here. Thank you very much. So all of you. Thank you so much for coming. आई होप नाजरीन आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।